Dear students, welcome back to my channel. Today I will continue English 1. I will give you some tips about English 1. I just advise you English 1 paper seems very easy. That's why students generally never read English 1. They mainly devote to science papers. Actually, in board exam, the record is that in English 1 they score very less marks. Though it seems nothing to read in English 1, still English 1 is the base of English language, either second paper or first paper. This is the fundamental. This describe the fundamental knowledge of a student in English. So, in day after tomorrow, English 1 paper is there. So I just explain you how to grasp the paper, whole syllabus in very least time. So total marks is 80 marks. We have 80 marks, total marks, 5 compulsory questions. Okay, so out of 5 compulsory questions, question 1 that is composition writing, जिसको हम ऐसे बोलते हैं, that bears 20 marks. It will also write there the wording should be between 300 to 350 words. Okay, recommended time is 30 minutes. So you should diagnose your time in such a manner that you never spend more than 30 minutes from this section. So English 1 composition में 5 टाइप का ऐसे आता है, 5 तरीके में ऐसे आता है. फर्स्ट होता है डेस्क्रिप्टिव, 1 आता है डेस्क्रिप्टिव ऐसे या डेस्क्रिप्टिव कंपोजिशन. दैट मीन्स टू डिस्क्राइब समथिंग और समवन. ओके, डेस्क्रिप्टिव में किसी के बारे में, कोई चीज़ के बारे में, या द पर्सन यू लाइक मोस्ट, किसी के बारे में डिस्क्राइब करना. देन नैरेटिव, टू नैरेट सम इंसिडेंट. कोई अगर तुम्हारे ज़िंदगी में कुछ इंसिडेंट हुआ, कोई घटना घट गया, तब इसके बारे में, तब ये नैरेटिव एसएमएस जनरली इसको एक्सपीरियंस से बोला जाता. सपोज तुम ट्रेन में कभी सफ़र करते, ट्रेन में क्या क्या तुम्हारा हुआ, कोई ट्रेन में कोई इंसिडेंट हुआ. एक बार एक आया था ये सरप्राइज गिफ्ट, बच्चों ऐसे लिखे थे, किसी ने लिखा था, मैं जब मेरा पापा मम्मी के साथ दिल्ली सफ़र कर रहा था, ऐसे रात करीब 1 बजे सडनली मैंने देखा सब लोग सो गए थे. मेरा जस्ट बर्थ का नीचे मैंने देखा एक बॉक्स था, उसी बॉक्स का ऊपर लिखा हुआ था सरप्राइज गिफ्ट. तो मैंने सोचा इसमें क्या हो सकता. तो मैं बहुत इनिक्विसिटिव एंजाइटी के साथ नीचे उतरा. जब नीचे आया, एक एल्डरली मैन मुझे मना किया, कहा इसको छू मत बेटे, ये नया चीज़ हो सकता है, अनजान चीज़, कुछ भी इसमें किसका अंदर रख सकता. हकीकत में मैं इसका बात माना, नहीं छुआ. थोड़ी देर बाद जो स्क्वाड टीम आए, इसको देखे, इसका अंदर एक्चुअली टाइम बम था. सडनली एक देर वाली अनाउंसमेंट इन कंपार्टमेंट नंबर 10, it is suspected that there is something unwanted thing, and a time bomb is there. So everybody should alert, and within no time they should get down of the compartment. So everybody got down. Suddenly I saw only a handicapped boy who was in the upper berth. No one with him, only his old grandfather. His grandfather also got down because from backside everybody pushed him and got him out. So he was weeping. What to do? Courage, my bete, what to do? How you are a handicapped boy? How you will get down? So he was weeping, but crying loudly, but nobody there was to help him because everybody knew
within no time, within fraction of second, there will be bombing. But how to save from the bombing? So now everybody has love for their own life. That's why no one was interested to rush inside the compartment and rescue the boy. What I felt, I don't know. Suddenly there was a terrible sensation in my heart. I just my mother hugged me tightly. I just snatched away from my mother's hand and entered inside the compartment. My mother cried vigorously, but within no time, I just saw the handicapped boy was fell down from the compartment. I snatched him and got out of the compartment. No sooner did, यहाँ पे no sooner यूज हुआ, no sooner did I get out of the compartment, then the bomb was blasted and see everything finished. So my mother hugged me tightly. He was weeping very vigorously. I thought something was happened to, perhaps she will be senseless after some time. But anyhow, then other people gathered there. They just consoled my mother. You see, your small boy is not a boy of 12, but this is he the real hero among these. And in coming day, it suddenly in newspaper, my name was came in the first page. So this is the heroic deed I did in my life. So this is actually a very memorable experience which I experienced in my life. So this type of narrative essay come. Okay. Then argumentative. Argumentative essay. Argumentative essay means you have to argument whether this is positive or negative. Suppose एक ऐसे मैं बताता हूँ, women should be restrained inside the four walls of a house. Give your judgment for or against it. So तुम इसका फॉर में लिख सकते, इसका अगेंस्ट में लिख सकते. तो ये भी थोड़ा अच्छा है. तो डिस्क्रिप्टिव भी लिख सकते, आर्गुमेंटिव भी लिख सकते. देन स्टोरी राइटिंग में एक वर्ड में एक सेंटेंस से स्टार्ट होता, तब उसी को देख के एक कोई स्टोरी तुम्हें लिखना है. इसके बाद पिक्चर बेस्ड. ये पिक्चर बेस्ड को ऐसे भी बहुत अच्छा है, लेकिन प्रोवाइडेड पिक्चर के बारे में तुम्हारा आइडिया हो. अगर पिक्चर को तुम अच्छी तरह समझ नहीं पाया, टोटल ऐसे विल कट ऑफ. दैट्स व्हाई यू ट्राई टू attempt, in my knowledge, either descriptive or narrative or argumentative. Okay. Then actually this section tests your ability to express idea clearly or creatively. Okay. इसी में तुम्हारा एक्चुअल आइडिया क्या होता है ये टीचर को पता चलेगा. इसीलिए इसका ऊपर थोड़ा ध्यान देके तुम्हें लिखना चाहिए. बट you think that your recommended time is 30 minutes, so don't cross 30 minutes. Okay. Then question 2 is letter writing. लेटर राइटिंग होता है 10 मार्क. ओके. इसका recommended टाइम होता है 20 मिनट्स. ओके. ये दो टाइप का लेटर होता है, एक इनफॉर्मल होता है, एक फॉर्मल होता है. इनफॉर्मल लेटर तुम्हारा फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, ये सब लोगों के पास लिखा जाता है ये लेटर. लेकिन और फॉर्मल में कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, स्कूल का प्रिंसिपल, एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, ये जनरली आता है. लेकिन इनफॉर्मल लेटर को बच्चों ज़्यादातर फॉर्मल लेटर को चूज करते, क्योंकि इसी में थोड़ा मार्किंग अच्छा रहता है. ओके. सो ये जो लेटर सेक्शन होता है, दिस विल बियर 10 मार्क्स, बट रिकमेंडेड टाइम इज 20 minutes. This section tests your ability to communicate effectively in your written form. तुम how you are able to write anything effectively. तो ये तुम्हारा एक्चुअल नॉलेज का डेप्थ ऑफ नॉलेज को टेस्ट करता है. ओके. सपोज मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल. एक एडिटर के पास एक लेटर लिखेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार वो भी आता है. कोई ऑफिशियल लोगों के पास आएगा, स्कूल का प्रिंसिपल के पास तो शायद बहुत कम चांस है. फिर भी ऑफिस ये माने इनफॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर का अंदर आता है, फिर भी स्कूल का प्रिंसिपल के पास बहुत कम चांस.
मेरे ख्याल में इसी बार आई होप टू द एडिटर, एडिटर के पास आने का चांस ज़्यादा है। ओके, सपोज मैं कहूँगा राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए पॉपुलर न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी के बारे में तुम्हारा कंसर्न देना। ओके, तो अब ये क्या करना, फर्स्ट होता है तुम्हारा हेडिंग, तुम लिखेंगे सपोज हैप्पी होम स्कूल भद्रक, इसके बाद डेट, डेट कौन सा डेट, तुम्हारा एग्जाम 18, तो इसका नीचे लिखना 18 फरवरी 2025। ओके, तो 18 फरवरी के बाद कॉमा 2025, और ये जो होता है हैप्पी होम स्कूल भद्रक, ये जगह में कॉमा देना नहीं, क्योंकि nowadays there is a trend not to give comma in heading of the letter. ओके, एंड ये होता है एक ओल्ड स्टाइल, एक न्यू स्टाइल। ओल्ड स्टाइल में ये सब लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, ओल्ड न्यू स्टाइल में, ओल्ड स्टाइल में सब होता है लेडर टाइप। लेडर मीन्स ये जो कोई पैराग्राफ के लिए थोड़ा स्पेस देते, ये न्यू स्टाइल ओल्ड स्टाइल में होता है, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, तब न्यू स्टाइल में हम लिखेंगे। ओके, सपोज हम एक एडिटर के पास लिखेंगे, फर्स्ट मैंने लिख दिया हैप्पी होम स्कूल भद्रक, तब 18 फरवरी 2025, याद रखना यहाँ थोड़ा गैप। ओके, थोड़ा वहाँ स्पेस देना, स्पेस देने के बाद द एडिटर, पहले टू लिखा जाता था, आजकल टू नहीं लिखते, द एडिटर। ओके, द टाइम्स ऑफ इंडिया भुवनेश्वर। ओके, तो अब यहाँ पे भी हम कॉमा वगैरह कुछ नहीं देंगे न्यूज पैटर्न में। ओके, देन स्पेस दे देना थोड़ा, डियर सर और मैडम, यहाँ पे कॉमा देना है, याद रखना पंक्चुएशन मार्क शुड बी हियर, डियर सर और मैडम, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टू put a column in your esteemed newspaper. I would like to bring your kind attention to put a column in your esteemed newspaper concerning about the reckless driving in your city which hampers road safety. ये जो reckless driving करते हैं हमारा सिटी में, जो हमारा रोड को सेफ्टी का ऊपर असर डालता, इसके बारे में मैं आपको अवगत करना चाहता हूँ। ओके, देन स्पेस। ओके, एक पैराग्राफ स्टार्ट होना, तो बॉडी ऑफ द लेटर, रोड एक्सीडेंट्स हैव बिकम एन एवरीडे occurrence in our city. Okay, reckless driving takes away many innocent lives every year. A large number of accidents are caused by people driving recklessly after being drunk. Actually वो ड्रिंक करने के बाद जो ड्राइविंग करते, ये कारण बनता इनका एक्सीडेंट का। ओके, द एक्सीडेंट्स आर ऑल्सो हैपन फॉर द ड्राइवर सो डोंट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते, आइदर डेलिबरेटली और अदरवाइज। ओके, देन थोड़ा स्पेस, दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द बॉडी, हेंस through the column of your newspaper I would like to appeal to the people to refrain from एक फैजल भार, you should refrain from bad habit, you should refrain from bad habits, so to refrain from engaging in reckless driving and urge them to diligently follow traffic rules. I also hope to the concerned authority would take strong and stern steps in this regard to ensure the safety of the people. Okay, मैं ये भी लिखना, मैं ये चीज चाहता हूँ, खाली लोग सजग होंगे ये बात नहीं, वो कंसर्न्ड अथॉरिटी को भी सजग होना चाहिए ताकि वो अप्रोप्रिएट स्टेप लेंगे। ओके, वहाँ थोड़ा स्पेस, देन योर्स फेथफुली, यहाँ पंक्चुएशन मार्क कॉमा, इसके बाद तुम्हारा नाम लिखना। सपोज तुम्हारा नाम तुम लिख दिया अनुप राव, इसके बाद कभी फुल स्टॉप नहीं देना, नाम के बाद कभी फुल स्टॉप नहीं रहता। ओके, देन नंबर 3 होता है नोटिस और ईमेल। नंबर 3 नोटिस ईमेल, और 10 मार्क का क्वेश्चन आता है,
This question is divided into two parts. You should spend 30 minutes in total on both parts of the question. Okay. Then नोट फर्स्ट होता है सपोज नोटिस. नोटिस में यू विल बी आस्क्ड टू राइट ए नोटिस यूजुअली फॉर ए स्कूल इवेंट और एन अनाउंसमेंट. दिस पार्ट बियर्स 5 मार्क. ये नोटिस का 5 मार्क. देन ईमेल आईडी. द सेकंड पार्ट इन्वॉल्व्स ड्राफ्टिंग ए फॉर्मल ईमेल रिलेटेड टू द नोटिस. यू जो नोटिस लिखे इसी के ऊपर एक ईमेल हम लिखेंगे. दिस पार्ट ऑल्सो बियर 5 मार्क्स. ओके. तब ये टोटल हो गया 10 मार्क्स. 10 मार्क्स से बाद तब हम इसके बाद आता है तब हम नोटिस ईमेल कहेंगे. नोटिस ईमेल. नोटिस में सपोज हम देखेंगे एक होता है सपोज एक क्वेश्चन में जस्ट रीड आउट कर देता हूँ. March 22nd is World Water Day. The school dramatic club is planning to stage a one-act play to mark the occasion and create awareness. Okay, write a notice to be put on the school notice board giving details of the event. तो नोटिस का पहले एक हेडिंग होता है. सपोज हम लिखेंगे वर्ल्ड वाटर डे. वाटर इज लाइफ. सो ये हेडिंग ये इसके लिए 1 मार्क. इसके बाद नेम ऑफ द इवेंट. नेम ऑफ द इवेंट क्या होगा? वन एक्ट प्ले. इसका नीचे. Then date, third column, on 22nd March, World Water Day. ये हो गया पहले हेडिंग. इसके बाद नेम ऑफ द इवेंट. इसके बाद डेट. हेडिंग के लिए 1 मार्क. वन माने डेट के लिए 1 मार्क. तब इवेंट के लिए डेट इवेंट के लिए 1 मार्क. डेट के लिए हाफ मार्क. देन टाइम फ्रॉम 9 AM to 12 noon. ये हाफ मार्क. वेन्यू एट स्कूल ऑडिटोरियम हैप्पी होम स्कूल. ये हाफ 1 मार्क. ओके. देन बॉडी. ऑल इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स मस्ट गिव देयर नेम्स टू मिसेस दयाल शर्मा, हेड ऑफ स्कूल ड्रामेटिक क्लब ऑन और बिफोर 18th December 2024. ओके. ये मार्च में होता है मीन्स ऑन और बिफोर 10th March 2024. ये 1 मार्क. ये टोटल 10 मार्क हो गया. देन उसी का आधार पर एक ईमेल आएगा. राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ ए नेबरिंग स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू सेंड ए टीम ऑफ चिल्ड्रेन टू पार्टिसिपेट इन द इंटरएक्टिव सेशन व्हिच वुड फॉलो द प्ले. ये जो वन एक्ट प्ले होगा. इसके बाद हम क्या करेंगे? एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को इन्वाइट करेंगे ताकि वो एक इसी में पार्टिसिपेट करने के लिए. वो तो इंटरएक्टिव सेशन में यहाँ लिखेंगे 2 के बाद एक सेमीकोलन 2 बिंदु वाला. प्रिंसिपल सेंट लॉरेंस स्कूल @gmail.com. इसके बाद सब्जेक्ट एक सीसी लिखा जाता. हम इसको नहीं लिखेंगे. कोई अलग डिपार्टमेंट को देने पर लिखा जाता. कोई जरूरी नहीं. इसके बाद सब्जेक्ट सब सेमीकोलन. इन्वाइटेशन of a group of students to participate in an interactive session. ऊपर वाला हाफ मार्क. 2 के लिए सब्जेक्ट के लिए हाफ मार्क. देन सैल्यूटेशन. ये हो गया हाफ मार्क. डियर सर और मैडम कॉमा. देन ऑब्जेक्ट. देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटेंस ऑफ द बॉडी. आई एम पायल शर्मा कॉमा ड्रामेटिक सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल स्टूडेंट काउंसिल. वी आर ऑर्गेनाइजिंग एन इंटरएक्टिव सेशन इन योर स्कूल to raise awareness. ये हाफ मार्क. टोटल 1 मार्क. देन एक्सप्रेशन. द प्रोग्राम वहाँ थोड़ा क्या होता है स्पेस होना चाहिए. द प्रोग्राम विल बी हेल्ड ऑन 22nd March 2025 वर्ल्ड वाटर डे फ्रॉम 7 AM to 10 AM at the school auditorium. Okay. We request you to send a group of 5 students to participate in the event. ओके. ये तुम्हारा हो गया टोटल. ये 1 मार्क हो गया. इसके बाद थोड़ा स्पेस. वी लुक फॉरवर्ड टू ए फेवरेबल रेस्पॉन्स. देखो लुकिंग फॉरवर्ड टू ए फेवरेबल रेस्पॉन्स होने पर कॉमा देंगे. लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस हम लिखे. मैं तुम लोग को बताया वी लुक फॉरवर्ड टू ए फेवरेबल रेस्पॉन्स. सो दिस इज ए कंप्लीट सेंटेंस. सो यू शुड गिव punctuation mark full stop. Thanking you, comma. Okay. Yours faithfully, punctuation mark, comma. Then
लिख दिए पायल शर्मा। ओके, इसके बाद ड्रामेटिक सेक्रेटरी, इसका डेजिग्नेशन कॉमा स्टूडेंट काउंसिल हैप्पी होम स्कूल। ओके, ये सब्सक्रिप्शन समझे एंड डेजिग्नेशन, इसके लिए हाफ मार्क। सो टोटल 10 मार्क हो गया। इसके बाद तुम्हारा पैसेज, पैसेज में टोटल आता है, ये थोड़ा रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, 20 मार्क होता है। इसमें वर्ड मीनिंग 3 मार्क होता है। ये वर्ड मीनिंग को थोड़ा सा देखना है, पैसेज का अंदर जो चीज होता है इसका रिलेटेड होगा, क्योंकि हम तो सब वर्ड का मीनिंग नहीं जानते। तो पैसेज का अंदर जो वर्ड मीनिंग इसका आधार पर हम देखेंगे और गैस करेंगे, उसी को अच्छी तरह पढ़ेंगे ताकि इसका मतलब निकलेगा। ओके, देन क्वेश्चन आंसर, ये 9 मार्क होता है। जैसे 3 अननोन वर्ड 3 मार्क वर्ड मीनिंग, देन ये होता है 9 मार्क का क्वेश्चन आंसर 1 + 2 + 2 + 2 + 2। ओके, देन एक होता है बॉक्स में लिखना प्रेसी ये बड़ा पैसेज को छोटा करके लिखना। ये कितना मार्क होना चाहिए, ये 50 वर्ड में होना चाहिए, 8 मार्क। इसका ऊपर पूरा ध्यान देना, नहीं तो ये हो नहीं पाएगा। क्योंकि मैं इसलिए तुम लोग को सजेस्ट करता हूँ, अपनी मन का माने तुम ऐसे कर देना, थोड़ा पेंसिल में वहाँ पे एक मैंने पेपर में लिख देना 50 बॉक्स होगा, समझे। 50 वर्ड मतलब 10 बॉक्स होगा, एक लाइन में 10 वर्ड, 5 लाइन, 10 टोटल 50 वर्ड। 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना नहीं चाहिए। इसीलिए तुम थोड़ा रफ में एक जगह में पूरा हल्का ढंग से पेंसिल में लिख देना, ताकि इसको बाद में मिटा सकते। तब ये जो हुआ, तो अब अप्रोक्सीमेटली एक फास्ट रफ कर देना। रफ करने पर या तुम यहाँ पर वहाँ पे रफ करके वहाँ नीचे एक जगह पर रख के काट देना, इसको कटिंग कर देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऊपर रफ लिखना, जब कोई चीज कटिंग करेंगे तब रफ लिखेंगे। तो ये जो हो गया, ये 50 मार्क, 50 वर्ड के लिए 8 मार्क, इसके ऊपर पूरा ध्यान देना। ओके, देन ये क्वेश्चन 4 हो गया। देन फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ये 8 ब्लैंक स्पेस होता है 4 मार्क का, ये प्रीपोजिशन। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स, ये जो ब्लैंक स्पेस होता है ना, वो पैराग्राफ, वहाँ पे ज्यादातर पास्ट टेंस होता है। जो होता है इसका ऊपर ज्यादातर ध्यान देना, वो पास्ट टेंस होता है। लेकिन स्टार्टिंग में कोई अगर ब्लैंक रहेगा, ये नॉर्मली आईएनजी होता है। सपोज स्विमिंग डैश ए गुड एड, ब्रैकेट में स्विमिंग इज ए गुड एडवाइस, गुड एक्सरसाइज। तो स्टार्टिंग में जो होता है आईएनजी होता है, नहीं तो ज्यादातर होता है पास्ट टेंस। एकादश वर्ड होता है हेड और थर्ड। ओके, देन जॉइन द सेंटेंस विदाउट यूजिंग एंड व्हाट सो। ओके, ये इसमें 4 मार्क होता है। देन 8 मार्क होता है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रीराइट द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। ओके, तो मैं तुम लोग को कुछ पोर्शन बताना चाहता हूँ। जैसे ये होता है, जैसे प्रीपोजिशन के बारे में, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ही वाज बिसाइड हिमसेल्फ, he was beside himself dash joy, with joy. Okay, I dreamt about last night, dreamt about, I dreamt about, dreamt के पास about होता है। Why did you run away from me? Okay, then never yield dash temptation, never yield to temptation. Okay, my brother is in such dash employment, search of employment. Okay, I am not liable dash the debt incurred by my friend. Liable मतलब not legally answerable, liable to. I am not liable to the debt incurred by my friend. मेरा फ्रेंड जो डेप्ट किया इसके लिए मैं आंसरेबल नहीं हूँ। आई एम नॉट लीगली आंसरेबल। सपोज
You are liable dash your father's debt. ये तो होगा you are answerable for your father's debt. Okay. Then students are seldom attentive dash their lessons. Attentive to. You should attentive to your lessons. Children are bent dash mischief. Bent on. Children are, ये important होता है थोड़ा क्योंकि अजीब लगता है. Children are bent on mischief. The song was sung dash Rahul Dev. Sung by S-U-N-G. The song was sung by Rahul Dev. Mr. Reddy presided dash the meeting. Over the meeting. Kindly look dash my house when I am away. Look after. Okay, देखभाल करना. The judge was dash the impression that the convict was the killer. The judge was under the impression that he was under the impression that the man was the convict. Under the impression. Okay. Good people must guard dash evil doers. Guard against evil doers. Dash drinking, he also chew betel nuts. Beside drinking. Acha. Please don't interfere dash my affairs. Please don't interfere in my affairs. The money was divided among 3 brothers. क्योंकि 2 से ज्यादा है. And 1 sister. The money was divided among 3 brothers and 1 sister. Okay. Divide the chocolates between the 2 of you. 2 जन का होगा. The nightingale sang dash morning to evening. From morning to evening. The train is dash time, on time. You should on time to the school. He normally reach school in time. मतलब 7 बजे स्कूल है, 7 बजे का अंदर पहुंचता है. On time मतलब फिक्स टाइम, पर्टिकुलर टाइम का होगा. He walked dash the auditorium. Walked into the auditorium. Okay. Then rewrite the following sentences according to the instruction given after each. Don't change the meaning of the sentence. इसी में एक्चुअली वो पहला पैटर्न का आजकल ABCD दिया जाता है. इसी में तो और इजी हो जाएगा. इसी में से हम देखेंगे जो ऑप्शन में रहेगा. He was the head boy of the school, so he was given a badge. क्या होगा? Being the head boy of the school, he was given a badge. Okay. माने हेड बॉय होने के नाते उससे बेच दिया गया. ओके. देन इट इज प्रोबेबल दैट ही विल स्कोर फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स. बिगिन इन ऑल प्रोबेबिलिटी. क्या था क्वेश्चन? इट इज प्रोबेबल दैट ही विल स्कोर फुल मार्क इन मैथमेटिक्स. In all probability, he will score full mark in mathematics. Okay. Then the old man had no other company but his dog. Begin with apart from the dog. The old man had no other company. Apart के बाद from होता है. When he reached 21, he got married. Begin hardly. देखो हार्डली के बाद हेड होता है, इसके बाद व्हेन होता है. ये वेरी इंपॉर्टेंट. सम पोर्शन आर आल्सो इंपॉर्टेंट. व्हेन ही रीच्ड 21, आई रिपीट, ही गॉट मैरिड. हार्डली हैड ही रीच्ड 21 व्हेन ही गॉट मैरिड. अगेन आई रिपीट, व्हेन ही रीच्ड 21, ही गॉट मैरिड. इसको लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे हार्डली हैड ही रीच्ड 21 व्हेन ही गॉट मैरिड. ओके. देन एज सून एज द मिनिस्टर गॉट डाउन फ्रॉम द स्टेज, देयर वाज ए लाउड एक्सप्लोजन.
No sooner did the minister get down from the stage then there was a loud explosion. Okay. No sooner did the minister got down, जो था वो get down हो जाएगा from the stage, then लगेगा THAN, there was a loud explosion. If the boy confesses his guilt, he will not be punished. If the boy confesses his guilt, he will not be punished. इसका मतलब यूज unless the boy confesses his guilt, ये very important, he will be punished. अगर ये लड़का अपना गलती नहीं मानेगा तब उससे पेनल्टी मिलेगा. अगर तुम पढ़ाई ढंग से नहीं करेंगे तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं होगा. इसका मतलब unless the boy confesses his guilt, unless नेगेटिव सेंस में लगता है, अगर ये लड़का अपना गलती को नहीं माना he will be punished, उससे पनिशमेंट मिलेगा. ओके. unless the boy confesses his guilt, वहां पे कॉमा, then नहीं लगेगा, he will be punished. ओके. then he is a footballer as well as a good cricketer. He is a footballer as well as a good cricketer. Begin not only is he a footballer but also a good cricketer. तुम लोग का दिमाग में ये भी आ सकता, हम लिख सकते नॉट ओनली ही इज ए फुटबॉलर बट ऑल्सो ए क्रिकेटर, लेकिन ये थोड़ा अच्छा लोग माने आजकल वही लिखते हैं, नॉट ओनली इज ही ए फुटबॉलर बट ऑल्सो ए क्रिकेटर, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता. सानिया कंसल्टेड हर टीचर बिफोर अपियरिंग फॉर द कंपटीशन. ओके. तब बिगिन सानिया, कैसे बिगिन करेंगे? सानिया डिड नॉट अपियर द कंपटीशन बिफोर कंसल्टिंग हर टीचर. ओके. सानिया कंपटीशन अपियर नहीं की टीचर को कंसल्ट करने से पहले. ओके. द वार्डन डील्ट विथ द मिसक्रिएंट्स फार्मली. बिगिन द वार्डन वाज firm in dealing with the miscreants. Okay. Very few teachers in the school are as dedicated as Mr. Ojha. Very few teachers in the school are as dedicated as Mr. Ojha. हम लिखेंगे very few, तब मिस्टर ओझा के तरफ और भी टीचर है डेडिकेटेड, तब हम इसको लिखेंगे मिस्टर ओझा इज मोर डेडिकेटेड देन मोस्ट ऑफ द टीचर्स ऑफ द स्कूल. ओके. बहुत सा टीचर से डेडिकेटेड. ओके. His unexpected pleasure surprised everybody. His unexpected presence took, इसके बाद fill in the blanks. His unexpected presence took everyone by surprise. ये important, ये थोड़ा अजीब लगता. His unexpected presence surprised everybody. ये कहा begin his unexpected presence took. हम क्या लिखेंगे? His unexpected presence took everyone by surprise. ओके. ये याद रखना. His unexpected presence surprised everybody. हम लिखेंगे his unexpected presence took everyone by surprise. Okay. Meena is too arrogant to listen to others. Use so that. तो अब लिखेंगे क्या होगा? Meena is so arrogant that she will not listen to others. Meena is too arrogant that she will not listen to others. Okay. If you do this in a hurry, you will make mistake. Begin to avoid.
To avoid mistake, don't do it in a hurry. Okay. The team consisted of 6 batsmen, 4 bowlers and a wicket keeper. यूज कंप्राइज्ड, कंप्राइज्ड के बाद कोई भी प्रीपोजिशन ऐड नहीं होता, तब कंसिस्टेड ऑफ था, कंसिस्टेड ऑफ, लेकिन हम कंप्राइज जब लगाएंगे हम कहेंगे द टीम कंप्राइज्ड 6 बैट्समैन 4 बॉलर्स एंड विकेट कीपर। कंप्राइज्ड के बाद कुछ प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ये याद रखना। ओके, यू हैव गेन्ड सम फ्लैश इन रिसेंट डेज, तुम थोड़ा माने हेल्दी हो गया, इसका मतलब यू हैव माने यूज पुट इन प्लेस ऑफ गेन, यू हैव पुट इन सम फ्लैश इन रिसेंट डेज। इन स्पाइट ऑफ बीइंग बल्की ही रन्स वेरी फास्ट, वो हेल्दी होने के बावजूद बहुत जल्द वो दौड़ता है। तब डेस्पाइट बीइंग बल्की, तब डेस्पाइट के पास ऑफ नहीं लगेगा, डेस्पाइट बीइंग। ओके, डेस्पाइट बीइंग बल्की ही रन्स वेरी फास्ट। मैं थोड़ा तुम्हारे जानकारी के लिए बताता हूँ। ही इज पोर, ही इज काइंड, इसको डेस्पाइट लगाएंगे। डेस्पाइट बीइंग पोर ही इज काइंड। हम कहेंगे ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज क्रिकेट। डेस्पाइट प्लेइंग फुटबॉल ही प्लेज क्रिकेट, क्योंकि यहाँ मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब होने पर वो आईएनजी हो जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बीइंग हो जाता है। ऐसे इंस्पाइट लगाएंगे, ही इज पोर, ही इज काइंड, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पोर ही इज काइंड। सपोज हम कहेंगे डेस्पाइट बीइंग पोर ही इज काइंड। ऐसे में जो एक सेंटेंस बताया था, कौन सा, वेरी फ्यू टीचर्स इन द स्कूल आर डेडिकेटेड एज मिस्टर शर्मा। सपोज हम लिखेंगे, क्या बताए, मिस्टर शर्मा इज मोर डेडिकेटेड देन मोस्ट ऑफ द टीचर्स ऑफ द स्कूल। हम कहेंगे सपोज मिस्टर शर्मा इज द मोस्ट डेडिकेटेड टीचर, तब इसको हम भी कंपैरेटिव करेंगे। कैसे करेंगे, नो टीचर इन द स्कूल इज एज डेडिकेटेड एज मिस्टर शर्मा, ये हो गया पॉजिटिव। ओके, अच्छा, मिस्टर शर्मा इज डेडिकेटेड देन एनी अदर स्कूल टीचर ऑफ द स्कूल, तब कोई भी टीचर से ये ज्यादा डेडिकेटेड है, कंपैरेटिव हो गया। ओके, राकेश इज टू यंग टू गेट ए ड्राइविंग लाइसेंस, तो इसको यूज सो दैट राकेश इज सो यंग दैट ही कैन नॉट गेट ए ड्राइविंग लाइसेंस। ओके, ही respects his teachers and elders, he is respectful towards his teachers and elders. Manoj is the best cricketer in our cricket team. Manoj is the best cricketer in our cricket team. Begin no other. No other cricketer is as good as Manoj in our cricket team. Okay, ये पॉजिटिव हो गया। Had I not helped her, she would have not succeeded. Had I not helped her, she would not have succeeded. अगर मैं इसकी मदद, Had I not helped her, she would not have succeeded. अगर मैं इसका मदद नहीं करता, उससे सक्सेस नहीं मिलता। तब इसके लिए देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, but for my help she would not have succeeded. But for my help she would not have succeeded. But for means without, use but for. Okay. He not only helped me with the advice but lent me some money. Begin besides helping me with advice, he also lent me some money. Okay, so anyhow total portion by hook or crook I completed.
You just go through this. I hope you will be benefited. Wishing you all the best. I remain. Thank you. Thank you very much.